you to describe it. The two type of question normally will be given in the examination. Number first type of question, object will be given to you. They will ask you to transform an image. Okay. Second type of question, object and image both will be given to you. They will ask you to describe it. These are the two types of question जो normally examination में आते हैं. तो हम दोनों type of question discuss करेंगे. सबसे पहले, how many types of transformation are there? There are 4 types of transformation. Number 1, translation. Translation means sliding movement. Translation means sliding movement. जैसे एग्जाम्पल ट्रांसलेशन की मेंशन है आपके पास, ये देखें, ये एज इट इज ऑब्जेक्ट ए, ट्राइंगल ए और ये ट्राइंगल बी. देयर इजंट एनी डिफरेंस बिटवीन ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी. सिर्फ ट्राइंगल ए और बी जो है ट्राइंगल ए से कहीं और जाके शिफ्ट हो गया. ठीक है, ये स्लाइडली मूव होके कहीं और आ गया. तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. जहां पे स्लाइडिंग मूवमेंट होगी, such type of transformation is called translation. Okay, the key point of translation is you need to know the key point of each type of transformation. Key point of translation is its translation vector. What is translation vector? Translation vector means के ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो कितना x और y मूव हो रहा है. सो लेट मी चेक कि इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर मींस ऑब्जेक्ट और इमेज कितना मूव हो रहा है एक्स एंड वाई. ट्रांसलेशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स एंड वाई. एक्स इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हॉरिजॉन्टली कितना मूव हो रहा है. इफ इट्स मूव टुवर्ड्स राइट, so you need to put plus sign. If it's move towards left, so you need to put minus sign. X is the horizontal movement, is the right or left. Y is called the vertical movement of the object and image. Vertical movement में आपके पास क्या होगा? Vertical movement means either it goes up or it goes down. If it's positive y, so it goes up. If it's negative, so it goes down. Okay, then इसके दो तरह के क्वेश्चन होंगे. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड, एक क्वेश्चन ऐसे होगा कि ट्राइंगल ए is transformed और मैप्ड. ट्रांसफॉर्म्ड लिखा होगा और मैप्ड लिखा होगा. इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिखी होती है. ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी या ट्राइंगल ए इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू ट्राइंगल बी. सो इन दिस केस triangle A is your object, this is your object, and triangle B जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इमेज आता है, that is called your image. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या होगा? ट्राइंगल A is transformed onto triangle B. अब इसका की पॉइंट क्या है? Under the translation vector, by the translation vector, या by the vector 2 minus 1 for example 2 minus 1. तो अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अब मैं इसको अलग से बना देता हूं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्राइंगल ए. फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल ए है. It transformed onto triangle B under the translation vector. Translation vector क्या है हमारे पास? Translation vector है 2 minus 1. This is translation vector जो कि मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है. Triangle A is your object. Object हमेशा given होगा. अगर इमेज बनाने का कहेगा तो under the translation vector 2 minus 1. What is the translation vector? 2 and minus 1. सो आपने क्या करना होगा? मैंने आपको ऑब्जेक्ट दे दिया
ट्राइंगल ए इज योर ऑब्जेक्ट, आपने इसको 2 और -1 मूव करना है. द अपर वन इज कॉल्ड x एंड द लोअर वन इज कॉल्ड y. The movement of x is either right. If it's plus, so it goes right. So +2 is there. It means object A is moved to right side. Means ये object A है, इसको हमने to right side move किया. And -1, y is -1, तो इसका मतलब है 1 down. क्योंकि y की movement up या down होती है. If it's +1, so it will be go up. If it's -1, so it goes down. तो मैं डायरेक्टली हर पॉइंट को, इसके 3 कोने हैं A, B और C. पहले मैं A को मूव करता हूं 2 राइट 1 डाउन. ये इमेज आ गया A का. मैंने A को क्या मूव किया, 2 ब्लॉक राइट मूव किया, 1 ब्लॉक डाउन मूव किया. सो आई गॉट द इमेज ऑफ A. सिमिलरली I have to move the object B, means vertex B as well. 2 right and 1 down. ये मेरे पास आ गया image of B. Similarly, I have to move the image of C as well. इस object को भी C के vertex को भी move करना है. 2 right 1 down. ये C का image आ गया. अब जब ये तीनों image आ जाएंगे तो आपने इन तीनों को ज्वाइन करना है. ये आपके पास ट्राइंगल B आ गया. Now this is your answer. आपने ट्राइंगल A को ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्राइंगल B में अंडर द ट्रांसलेशन वेक्टर 2 - 1. तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से आ सकता है. एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, आपको इमेज बनाने के मार्क्स मिलेंगे. और दूसरा तरीका क्या है ट्रांसलेशन के अंदर, इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर इज इक्वल टू इमेज. क्या फॉर्मूला होता है? ऑब्जेक्ट प्लस O फॉर ऑब्जेक्ट, T फॉर ट्रांसलेशन वेक्टर एंड I फॉर इमेज. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल A हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास. अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट देखूं तो ये है -4 एंड 6. सो -4 एंड 6. हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है 2 - 1. अब इसका आंसर क्या आएगा? x को x के साथ प्लस माइनस करेंगे, -4 में से 2 जाएगा, -2 एंड 6 - 1 5. तो इसका इमेज आया -2 एंड 5. तो A का इमेज आया -2 एंड 5 ओवर हियर. तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं डायरेक्टली कैसे करोगे. आपके पास क्वेश्चन होगा ट्राइंगल A इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल B अंडर द ट्रांसलेशन वेक्टर. ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास गिवन होगा जो कि अभी गिवन है 2 - 1. तो आपने ऑब्जेक्ट के जो 3 कोने हैं, तीनों कोने जो हैं, इन तीनों कोनों को, तीनों वर्टेक्स को 2 और -1 मूव करना है. माने x अगर प्लस में है तो वो राइट की तरफ जाएगा, अगर माइनस में होता तो लेफ्ट की तरफ जाता. y अगर प्लस में होता तो अपवर्ड जाता, माइनस में है तो डाउनवर्ड जाएगा. ठीक है, तो +2 - 1 मतलब 2 राइट एंड 1 डाउन. सो A का इमेज यहां पे आ गया. इसी तरह से B का इमेज अगर आपने निकालना है तो 2 राइट 1 डाउन, ये B का इमेज आ गया. सिमिलरली C का इमेज निकालना है तो 2 राइट 1 डाउन, ये C का इमेज आ गया. ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? सर समझ नहीं आया, राइट क्यों करेंगे? सुहेर, यू नीड टू चेक द ट्रांसलेशन वेक्टर. क्वेश्चन में ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन है 2 - 1. माने ट्राइंगल A को आपने इतना ट्रांसलेट करना है, माने 2 राइट मूव करना है और 1 डाउन मूव करना है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर को देखते हुए आपने इसको करना होगा. अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, समझा देता हूँ, नो इश्यू. अच्छा जी, लेट मी चेक अनदर क्वेश्चन. Look at this question. Look at second part. Triangle B is mapped onto triangle C by a translation vector 2 - 1, -2 - 3. Triangle B is your object. It will be given to you. Triangle B is your object. It will be given to you. Is mapped onto triangle C. Means triangle C जो होगा वो आपका image होगा. ट्रांसलेशन वेक्टर -2 - 3, इसका मतलब है 2 लेफ्ट
3 down. The upper one is representing x and the lower one is representing y. x की जो मूवमेंट होती है वो या तो राइट होती है या तो लेफ्ट होती है. x की जो मूवमेंट होती है वो क्या होगी? इधर इट गोज राइट और इट गोज लेफ्ट. इफ इट गोज राइट सो इट मींस +2 या प्लस में x की वैल्यू होगी तो वो राइट की तरफ जाएगी. अगर माइनस में x की वैल्यू होगी तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी. राइट नाउ इट्स -2. इट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 लेफ्ट जाएगा एंड y भी माइनस में, तो इसका मतलब है 3 डाउन जाएगा. ओके, तो मैं ट्राइंगल B को 2 लेफ्ट और 3 डाउन करता हूं. 2 लेफ्ट और 3 डाउन. दिस इज ट्राइंगल B. आई एम हाईलाइटिंग ट्राइंगल B. दिस इज ट्राइंगल B. देयर आर 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल B. दिस वन, इसको मैंने A का नाम दे दिया. दिस वन, इसको मैंने B का नाम दे दिया. और द थर्ड वर्टेक्स C. What is translation vector? -2 and -3. The translation vector is -2 and -3. This is the translation vector. It means आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2 लेफ्ट और 3 डाउन. ये x होता है और ये y होता है नीचे वाला. x अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में जाएगा, y नेगेटिव होगा तो डाउन में जाएगा. x के बारे में मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूं. x अगर प्लस में होगा तो राइट डायरेक्शन, x अगर माइनस में होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन. सिमिलरली अगर y प्लस में होगा तो अपवर्ड और y माइनस में होगा तो डाउनवर्ड. अभी -2 -3 है, इसका मतलब 2 लेफ्ट 1 2 लेफ्ट 1 2 3 डाउन. यह आ गया आपके पास A का इमेज. 2 लेफ्ट 3 डाउन. सिमिलरली मैंने B को भी 2 लेफ्ट 3 डाउन मूव करना है. 2 लेफ्ट 3 डाउन. यह आ गया आपके पास B का इमेज. सिमिलरली C का भी इमेज बनाना है. 2 लेफ्ट 1 2 लेफ्ट 1 2 3 डाउन. यह आ गया C का इमेज. ये C का इमेज. अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है. तो एज इट इज इमेज ट्राइंगल B, बिल्कुल ट्राइंगल B जैसी इमेज आपके पास बन जाएगी ट्राइंगल C, जो कि स्लाइडली मूव होके कहीं और आ जाएगी. जितना उसने ट्रांसलेशन वेक्टर बताया उतना मूव होके वो कहीं और आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन विच मीन स्लाइडिंग मूवमेंट. थैंक यू. अच्छा जी, दिस इज द ट्रांसलेशन. एक सवाल है जिसके अंदर आपने मूव करना होता है ट्राइंगल को, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसको आपने मूव करना होगा कि कितना राइट मूव करना है, कितना लेफ्ट मूव करना है. उसका ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास. सर दूसरे डॉट्स कहाँ गए? वो तो सिर्फ हम डायरेक्शन के लिए होता है, वो आप समझाने के लिए बताए थे. आपने हर ऑब्जेक्ट को 2 राइट 2 लेफ्ट और 3 डाउन मूव करना था. मैंने A को 2 लेफ्ट 3 डाउन मूव किया. देखो ये A है, दिस इज A. इसको मैंने 2 लेफ्ट और 3 डाउन मूव किया तो ये इसका इमेज आ गया. अगर B को मैंने 2 लेफ्ट 1 2 और 3 डाउन मूव किया तो ये B का इमेज आ गया. इसी तरह C को मैंने 2 लेफ्ट और 3 डाउन मूव किया तो C का इमेज आ गया. ठीक है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन होगा उसके हिसाब से आपने मूवमेंट करनी होगी. सर थोड़ा फिर से बता सकते हैं? मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूं. एक और क्वेश्चन देख लेता हूं. या रौनक इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा? सर फॉर्मूले से कैसे करेंगे? फॉर्मूले से कर लेते हैं. देखो इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से भी करता हूं. मैं इसको इरेज कर देता हूं. आपके पास फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज. कंडीशन थी ट्राइंगल B ऑन टू ट्राइंगल C. तो ट्राइंगल B इज योर ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल B इज योर ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल C इज योर इमेज. तो ये तो कंडीशन समझ लो. अब ट्राइंगल B के अंदर 3 वर्टेक्स हैं. एक A, इसको B का नाम दे दिया और इसको मैंने C का नाम दे दिया. ओके सर रिक्वायरमेंट क्या है? इमेज बनाना है. ट्राइंगल B आपके पास गिवन, दिस इज द क्वेश्चन. ट्राइंगल B इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल C बाय अ ट्रांसलेशन वेक्टर. और ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास गिवन है. आपको इमेज ट्राइंगल C फॉर्म करना है. ठीक है. अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स में यहां मेंशन कर देता हूं. ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -3 एंड 3. ए के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 3. ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है. तो पहले मैं ए को ट्रांसलेट करता हूं. ट्रांसलेशन वेक्टर है -2 और -3. तो ए का इमेज क्या बनेगा? -3 -2 -5 3 -3 0. ए का इमेज बना -5 एंड 0. तो -5 एंड 0 कहां पे आएगा? इस जगह पे आएगा. -5 एंड 0 ओवर हेयर. ये आ गया ए का इमेज.
अगर आपने b का इमेज निकालना है तो b के कोऑर्डिनेट हैं -4 and 2, ये b के कोऑर्डिनेट है, x -4 है और y 2 है यहाँ पे, -4 and 2। ट्रांसलेशन वेक्टर है आपके पास -2 and -3। b का इमेज बनेगा -4 -2 -6, 2 -3 -1। तो b का इमेज आपका बना -6 and -1। -6 and -1 कहाँ प्लॉट होगा? -6 and -1 ओवर हेयर। ये b का इमेज आ गया आपके पास। सिमिलरली अब आपने c का इमेज निकालना है। c के कोऑर्डिनेट है, ये c है, c के कोऑर्डिनेट है -1 and 2, -1 and 2। ट्रांसलेशन वेक्टर है आपके पास -2 -3। c का इमेज आएगा -1 -2 -3, 2 -3 -1, -3 -1, -3 -1 हमारे पास कहाँ पे? -3 -1 इज ओवर हियर। ये c का इमेज आ गया। अब इन तीनों को ज्वाइन कर देना आपने, a b और c को। ये आपके पास बन गया ट्राइंगल सी। तो या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या तो आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, अच्छा जी। थैंक यू। नाउ इसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? ये तो हमारे पास हो गया, ऑब्जेक्ट गिवन होगा, हमने इमेज बनाना होगा। इसका सेकंड टाइप क्या होगा क्वेश्चन का? ऑब्जेक्ट एंड इमेज both will be given to you, they will ask you to describe it. Second question will be object and image like this one. Now read the question carefully. Write down the vector that represent translation that maps triangle A onto triangle B. एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, दे विल आस्क यू टू फाइंड द इमेज। फर्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, ट्रांसलेशन वेक्टर इज गिवन टू यू, दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द इमेज। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ विल बी गिवन टू यू। ऑब्जेक्ट इज A, triangle A is mapped onto triangle B. Triangle A is your object and triangle B is your image. Both are given to you. They are asking to write down the translation vector. Write down the vector that represent the translation. आपने इसका वेक्टर लिखना है कि किस वेक्टर के थ्रू ये इमेज बन रहा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसलेशन। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी गिवन है, इमेज भी गिवन है, दे आर आस्किंग टू फाइंड द ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन मालूम करने का फॉर्मूला बनेगा इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया टू फाइंड आउट द ट्रांसलेशन वेक्टर। अब ट्रांसलेशन वेक्टर के लिए आपने क्या करना होगा? इमेज में से ऑब्जेक्ट को माइनस करना होगा। अब इमेज के अंदर तो 3 कोऑर्डिनेट है, एक ये रहा, एक इसका करस्पॉन्डिंग इमेज ये रहा। ओके, so you need to take any 2 coordinate। आप चाहें तो ये ऑब्जेक्ट, ए का ये ऑब्जेक्ट और बी का ये इमेज ले सकते हैं। आप चाहें तो ए का ये ऑब्जेक्ट और बी का ये इमेज ले सकते हैं। so what you need to do, you need to take the corresponding object and image, any one corresponding object and image। जैसे मैंने इसको ए का नाम दे दिया, अगर ये वर्टेक्स जो है, ये कोना जो है ट्राइंगल का, ये ए है, तो इसका इमेज ये होगा ए डैश, इसका करस्पॉन्डिंग। ये टॉप पर है, ये भी टॉप पर है, इसका करस्पॉन्डिंग इमेज ये होगा। तो अगर आप ये दोनों लेंगे तो ए आपका ऑब्जेक्ट है और बी आपका इमेज है। तो जो इमेज के कोऑर्डिनेट हैं वो है 4 -1, 4 -1। ये जो ए का बी का बी ट्राइंगल जो है ये आपका इमेज है और ए ट्राइंगल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। मेंशन है ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। तो ट्राइंगल ए आपका ऑब्जेक्ट है और ट्राइंगल बी आपका इमेज है। तो आपने इमेज का एक कोऑर्डिनेट लेना है, जैसे मैंने 4 -1 ले लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसी का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट है 2 and 3, -2 and 3। 4 में से 2 माइनस किए, you will get 2, -1 and -3 you will get -4। so this is called the translation vector, 2 and -4। तो इसका आंसर आएगा ट्रांसलेशन वेक्टर that represent A onto B
is 2 and -4। इसका मतलब है ए और बी में जो मूवमेंट है वो है 2 राइट एंड 4 डाउन। क्या मूवमेंट है? अगर मैं डायरेक्टली मूवमेंट चेक करूं ए और बी में तो देखें क्या आएगी। अभी मैं चेक करके आपको बताता हूं। जैसे ए से बी तक आने में, जैसे ए का ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब इन दोनों पॉइंट में मूवमेंट कितनी है ये देखें, 2 राइट 1 2 3 4 डाउन। तो 2 राइट मूवमेंट है और 4 डाउन मूवमेंट है, तो इसका डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं 2 - 4, और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आपका आएगा 2 - 4। सो दिस इज द ट्रांसलेशन। कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे? कोई भी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट लेने हैं, कोई भी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट लेने हैं बेटा। टीचर समझाता हूं दोबारा से। सर हाउ रिकॉग्नाइज व्हाट द इमेज एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्ट। इसमें मेंशन है ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी, ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी। तो ट्रायंगल ए इज योर ऑब्जेक्ट और ऑन टू के बाद जो आएगा ट्रायंगल दैट विल बी योर इमेज। ट्रायंगल ए इज योर ऑब्जेक्ट और ऑन टू के बाद जो आएगा दैट विल बी योर इमेज। सो ऑब्जेक्ट इज ए एंड इमेज इज बी। ठीक है, आपने कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेने हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल बी का इमेज ये लेता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ये वाला। अब जो मैंने येलो से हाईलाइट किए ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आपने करस्पॉन्डिंग ही इमेज और ऑब्जेक्ट लेना है। अगर आपने चेंज इमेज और ऑब्जेक्ट ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं इससे भी आपको शो करता हूं कि आंसर क्या आएगा। ये पॉइंट है जो दूसरा मैंने इमेज लिया येलो हाईलाइटेड, ये 5 - 3, इसके कोऑर्डिनेट है 5 - 3 और इसके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है 3 1 3 एंड 1। अब 5 में से 3 माइनस करूंगा, x में से x माइनस होगा, 5 - 3 2 -3 - 1 इट विल बी -4। देखो इससे भी सेम आंसर आ रहा है 2 - 4। ओके, सो आप कोई भी करस्पॉन्डिंग इमेज और ऑब्जेक्ट लेंगे सो यू विल गेट द सेम आंसर। इट्स अप टू यू, आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये इमेज लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ये वाला जो मैंने रेड सर्किल किया है हाईलाइट। सो यू नीड टू टेक एनी टू करस्पॉन्डिंग इमेज एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन नाउ इन ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन में बस यही था कि या तो आपको इमेज बनाना होगा या तो आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा या उसका ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। शाबाश। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? Any confusion? Now let's move the second part of the transformation, which is reflection. मैं आज आपको enlargement समझाता हूं, then reflection की तरफ आऊंगा। enlargement थोड़ा comparatively आसान है। Confusion is in making translation. Triangle. Triangle बनाने में हमजा बेटा देखें, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन होगा फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ट्राइंगल पी है। ट्राइंगल पी ऑन टू ट्राइंगल क्यू करना है आपने। ट्राइंगल पी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको गिवन है, ट्राइंगल क्यू आपने बनाना है। ट्रांसलेशन वेक्टर आपके क्वेश्चन में दे दिया, ट्रांसलेशन वेक्टर अंडर द ट्रांसलेशन वेक्टर 1 - 2। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ट्रांसलेशन वेक्टर है 1 - 2। तो आपने क्या करना है, हर कोने को, हर वर्टेक्स को, जैसे एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, 3 कोने हैं। तीनों वर्टेक्स को, तीनों कोनों को आपने 1 राइट माने +1 है तो 1 राइट और -2 है नीचे तो 2 डाउन मूव करना। जैसे मैंने अगर इस वर्टेक्स को, जो टॉप वाला वर्टेक्स है, इसको मैं मूव करूंगा तो 1 राइट 2 डाउन, इसका इमेज आएगा यहाँ पे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं दूसरे वर्टेक्स को मूव करता हूँ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले वर्टेक्स को 1 राइट 2 डाउन, इसका इमेज आएगा यहाँ पर, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर मैं तीसरे वर्टेक्स को मूव करता हूँ, ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये वाला, 1 राइट 2 डाउन, इसका इमेज आ गया यहाँ पे। ओके, अब ये 3 कोने आए हैं 1 राइट और 2 डाउन मूव करने के बाद, इन तीनों को ज्वाइन कर दो, ये आपका ट्राइंगल क्यू आ गया। एज इट इज ऑब्जेक्ट और इमेज बनता है, जितना ट्रांसलेशन वेक्टर है उस हिसाब से उसको मूव करना है, कितना राइट और कितना लेफ्ट, कितना अप और कितना डाउन, ये मूव करना या फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो आप।
ठीक है, इसकी वीडियो में और भी सेंड करता हूं हमजा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? रिफ्लेक्शन और रोटेशन की तरफ चल, एनलार्जमेंट की तरफ चलें, एनलार्जमेंट देन रिफ्लेक्शन एंड देन रोटेशन। यस, चलें एनलार्जमेंट की तरफ मूव करते हैं कि हाउ टू फाइंड द एनलार्जमेंट, और क्या एनलार्जमेंट में क्या कंडीशन होती है, सारी चीज़ें। पहले मैं एनलार्जमेंट के बारे में बताता हूँ, व्हाट इज एनलार्जमेंट, एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ एनलार्जमेंट, द पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ एनलार्जमेंट। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम ये दो टॉपिक्स करेंगे। अच्छा जी, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मीनिंग एनलार्जमेंट? एनलार्जमेंट से क्या बात जहन में आ रही है सबको? अगर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं तो बताएं। एनलार्जमेंट, मुझे तो इस तरह से लग रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, उनके साइज में फर्क आएगा। ठीक है, उनके क्या होगा, साइज में फर्क आएगा। सर लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। एनलार्जमेंट में ऑब्जेक्ट एनलार्ज होके लार्ज साइज में बन जाएगा, या ऑब्जेक्ट श्रिंक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एनलार्ज हो जाएगा और इमेज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, माने इनके साइज में फर्क आएगा बेसिकली। अच्छा, एनलार्जमेंट आपके पास एनलार्जमेंट के भी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक एनलार्जमेंट आपके पास होगा, ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन होगा और आपने एनलार्ज करके इमेज बनाना होगा, एक क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन एनलार्जमेंट का होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ विल बी गिवन टू यू एंड दे विल आस्क यू टू डिस्क्राइब इट। हर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक में इमेज बनाने को कहेगा और दूसरे में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों गिवन होंगे एंड दे विल आस्क यू टू डिस्क्राइब इट। तो हम सीखेंगे हाउ टू एनलार्ज द इमेज, हाउ टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कैसे करते हैं या श्रिंक कैसे करते हैं। एनलार्जमेंट में जो की पॉइंट होते हैं, द की पॉइंट ऑफ एनलार्जमेंट आर, नंबर वन, इट्स सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, इसका सेंटर क्या है ये हमने देखना है। नंबर सेकंड, इट्स स्केल फैक्टर, कि कितने टाइम्स एनलार्ज हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, इट्स स्केल फैक्टर। ठीक है, सेंटर, इट मे बी ओरिजिन, इट मे बी ओरिजिन और इट मे बी एनी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट इसका सेंटर हो सकता है। ओके, अच्छा जी, तो की पॉइंट आपका क्या है एनलार्जमेंट का? सेंटर और स्केल फैक्टर। ठीक है, अब रीड द क्वेश्चन, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Triangle C is enlargement of triangle A. Triangle C is enlargement of triangle A. It means triangle A is your object. It means triangle A is your object and triangle C is your image. क्योंकि triangle C जो है वो A का enlargement है. So triangle C will be your image and triangle A is your object. Now the key points are center 5, 3. Center is not origin in this condition and scale factor 3. Okay, center 5, 3 and scale factor is 3. तो ये की पॉइंट्स है इसके, जिसको देखते हुए आपने बनाना है। सेंटर आपका 5, 3 है और स्केल फैक्टर 3 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेंटर 5, 3 और स्केल फैक्टर 3। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी स्टार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं फिर क्वेश्चन आप करें। अच्छा जी, द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ न्यू सेंटर which is given in the question. Now the center which is given in the question is 5, 3. अगर तो सेंटर 0, 0 होता है, ओरिजिन होता है, तो ठीक है, आपका जो ग्रिड में सेंटर है आप वो ही कंसीडर करेंगे। बट इफ द सेंटर इज एक्सेप्ट ओरिजिन, माने 0, 0 के अलावा अगर कोई सेंटर है, सो यू नीड टू मेक अ सेंटर फर्स्ट। मींस मैंने 5, 3 पहले प्लॉट कर दिया, ये हमारा सेंटर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन you need to enlarge from the center 5, 3. आपने ट्राइंगल सी बनाना है जिसका सेंटर क्या है 5, 3। सब लोग पहले समझ ले, you need to draw a center first. इसमें कोई कंफ्यूजन? सेंटर जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपने हाईलाइट करना है। ओके, आफ्टर हाईलाइटिंग द सेंटर you need to make a new
मीन्स रफ आपने एक ग्रिड बनाना है, न्यू सेंटर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके मुताबिक। ये मेरा सेंटर जो है इस क्वेश्चन में वो है दिस पॉइंट, दिस इज माय न्यू ओरिजिन, ये मेरा न्यू ओरिजिन है। अब मुझे ट्राइंगल ए को इनलार्ज करना है और ट्राइंगल सी बनाना है। अब ट्राइंगल ए जो है दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के 3 वर्टेक्स है, मैं तीनों को नाम दे देता हूं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। 3 कोने हैं, मैंने तीनों को नाम दे दिया। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स विच इज ए बी एंड सी, जो हमने नाम दिया है। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो मैं ए बी और सी के वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन, जो कि मैंने हाईलाइट किया 5 3। अब इस ओरिजिन के मुताबिक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, 5 3 जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, इस सेंटर के मुताबिक ए तक जाने के लिए आपको 1 2 3 लेफ्ट जाना होगा। आपको कितना लेफ्ट जाना होगा? 3 लेफ्ट जाना होगा, और y की मूवमेंट नहीं है तो 0। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंटर। फिर से समझे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन। द न्यू ओरिजिन इज द हाईलाइटेड वन, जो रेड से हाईलाइट हुआ है। अब यहां से ए तक जाने के लिए मैंने 3 लेफ्ट जाना है, 1 2 और ये 3। मैं 3 लेफ्ट गया और अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं है तो y 0। सो हमने x और y निकाला, x से 3 लेफ्ट और y 0 है क्योंकि अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं है। सिमिलरली मुझे अगर इसी सेंटर से b तक जाना है, सो आई हैव टू मूव 3 लेफ्ट, 1 2 3 left and 2 down. So the coordinate of B is -3 and -2. मुझे इस सेंटर से जो हाईलाइट हुआ ये हाईलाइटेड सेंटर 5,3 जो क्वेश्चन में गिवन था, इस सेंटर के मुताबिक B तक जाने के लिए 3 लेफ्ट जाना पड़ रहा है और 2 डाउन जाना पड़ रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 एंड -2। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास इसी सेंटर के मुताबिक 2 लेफ्ट एंड 2 डाउन, 1 2 2 लेफ्ट, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, 1 2 लेफ्ट एंड 2 डाउन। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -2 2 लेफ्ट एंड 2 डाउन। सर आई डोंट अंडरस्टैंड द B1। ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, मैंने A B C का नाम दे दिया, ये B है। अब इस सेंटर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस सेंटर से B तक जाने के लिए मैंने 1 2 3 लेफ्ट गया और 2 डाउन गया। सो 3 लेफ्ट मतलब -3, 2 डाउन मतलब -2, ये -3 और ये -2। ओके नाउ, इसी तरह से C तक जाने के लिए, इस पॉइंट तक आने के लिए सेंटर से 2 लेफ्ट एंड 2 डाउन। यस, सो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए एक्स ए बी एंड सी के अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन। आई गॉट द सेंटर अकॉर्डिंग टू द न्यू, आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंटर। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है एनलार्जमेंट में? जो भी स्केल फैक्टर होगा वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, अब उन कोऑर्डिनेट्स को आपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल फैक्टर इज 3, जब 3 से आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और 3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। आपने 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 एंड -6। जब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 इंटू -2 -6 एंड -6। ये आपके पास आ गया इमेजेस, इमेज के कोऑर्डिनेट। ये जो आंसर आया ये किसके कोऑर्डिनेट आए हैं? ये कोऑर्डिनेट आए हैं आपके पास इमेज के। अब मैं मूव करता हूं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कहां आता है? ए का जो इमेज है वो माइनस, मैं यहां लिख रहा हूं इमेज ए इमेज इज -9 एंड 0, इमेज ऑफ बी इज -9 एंड -6 एंड इमेज ऑफ सी इज -6 एंड -6। ओके, क्योंकि इसका इमेज इधर ही बनेगा तो इसलिए मैंने यहां से इरेज कर दिया।